میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کر کے میرے آقا کے اوپر مارا کہ میرے آقا کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا، خون چھلک پڑا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کی شہزادی حضرت فاطمہ کی نظر پڑی تو آپ رونے لگی، ان کی آواز سن کر دوسری شہزادیاں آ گئیں، وہ بھی رونے لگیں۔ شہزادیوں کی آواز سن کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئیں، اور جیسے ہی میرے آقا کی پیشانی پہ نظر پڑی، خون میرے آقا کی پیشانی پہ لگا ہوا ہے۔ آج کی بی بی ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے پریشانی اٹھانے کی، یہ لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جانے دیجئے، آپ کیوں اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پتھر کھانے کی۔ لیکن وہ ام المؤمنین تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں آقا اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا کی مقدس پیشانی سے خون کے قطرے کو صاف کیا۔ میرے آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک ظالم کافر آپس میں باتیں کر کے کہتے ہیں کہ آج کون سا مذاق کیا جائے محمد کے ساتھ میں، معاذ اللہ۔ ایک کہتا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں، برابر میں اونٹ کی اوجڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اسے کپڑے میں باندھ کر کے لایا۔ آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا کی مقدس پشت پہ لا کر کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ آپس میں اتنا ٹھٹا مار کر کے کافر ہنس رہے تھے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گرے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا چلا، آپ آئیں۔ ابو جہل نے آنکھیں دکھائیں لیکن آپ نہیں ڈری، عتبہ نے گھڑکی دی لیکن آپ نہیں ڈری، شیبہ نے ڈرانا چاہا لیکن آپ نہیں ڈری، اور آپ ان کو ہٹاتے ہوئے آقا تک پہنچ گئیں اور میرے آقا کی پشت سے اونٹ کی اوجڑیوں کو ہٹایا۔ تب میرے آقا نے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں میرے آقا نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہمیں تو اسلام سجے سجائے گلشن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں نا۔ آج جس قوم کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، آج جس قوم کو واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی، آج جس قوم کو فیس بک چلانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا اپنے آقا کی ان قربانیوں کو یاد کرے گی؟ انہیں تو بس یہ پتا ہے کہ آئی پی ایل میں کس نے کتنی بال پہ کتنے چھکے مارے۔ اس قوم کو تو یہ پتا ہے نا کون سی فلم کب کس کی سپر ڈپر ہٹ ہوئی اور کس ہیرو کی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے۔ اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پتا ہے، اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پتا ہے۔ وہ نبی جو راتوں رات ہم گناہگاروں کے لیے روتے رہے، ہم نے کیا کیا اس نبی کے لیے، ہم نے کون سی قربانی دی؟ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، میرے آقا پوری پوری رات روتے تھے اس امت کے لیے کہ اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے میرے آقا، میرے آقا نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنی دقتوں کا سامنا کیا یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج یہ قوم اپنے نبی کی ان قربانیوں کو بھول گئی، آج یہ قوم اپنے نبی کی ان قربانیوں کو فراموش کرتی جا رہی ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے، تو میرے آقا فرماتے طائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ طائف کا میدان جب میرے آقا تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، شروع اسلام کی بات ہے، ابو جہل نے پہلے ہی لڑکوں کو وہاں سیٹ کر دیا۔ جیسے ہی میرے آقا پہنچے طائف کے میدان میں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، چاروں طرف سے پتھر میرے آقا کے جسم مقدس پہ لگ رہے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک پائے مبارک پہ پتھر آ کر کے لگتا، آقا اپنا پائے مبارک اٹھا لیتے جب تک دوسرے پائر پہ آ کر کے پتھر لگ جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا ایک بات کے اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، وہ دور ذرا سوچے تو صحیح، اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے تو صحیح۔
میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک میں خون بھرا ہوا ہے. میرے آقا کے پاس میں ہوا کے فرشتے نے آ کے کہا آقا اجازت دے دو ان طائف والوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں. پانی کے فرشتے نے کہا آقا اجازت دے دو میری حکومت سمندروں پہ ہے. آقا آپ کہو تو اتنا پانی ان کے اوپر ڈالوں کہ یہ یہیں ڈوب کر کے مر جائیں. ایک فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں یہیں پس کر کے مر جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں میں تو غریبوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں میں تو غریبوں سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں. آج یہ قوم مجھے نہیں پہچان رہی ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی. ان کی پریشانیوں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانے گی. پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا پھر دنیا نے وہ دور بھی دیکھا کہ میرے آقا کے نام پر وہی قوم اپنی گردنیں کٹاتی ہوئی نظر آئی. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پھر وہی قوم نبی کے نام پہ گردن کٹاتی ہوئی نظر آئی. یہ اسلام کتنی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا یہ اسلام کتنی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا. جب یہ اسلام لوگوں تک پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی پریشانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. تو قرآن میں رب فرماتا ہے قل اے میرے محبوب آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. تمہیں جان ملی ہے تو میرے صدقے میں ملی ہے مال ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے ایمان ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے قرآن ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے رمضان ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے رحمان ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے. میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا فرماتے ہیں میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. رب نے قرآن میں فرمایا محبوب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربہ تو میرے گھر والوں سے محبت کرو میرے اہل بیت سے پیار کرو میرے اہل بیت سے محبت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن میں رب نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں. آقا وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں وہ حسن ہیں وہ حسین ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں ہمیں حضرت علی سے محبت کرنی ہے ہمیں حضرت فاطمہ سے محبت کرنی ہے ہمیں امام حسن سے محبت کرنی ہے ہمیں امام حسین سے محبت کرنی ہے. کون امام حسین ہے؟ وہ امام حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عتم کہا جاتا ہے. ہاں وہی حسین جنہیں مولا علی کا نور نظر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں فاطمہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں امام حسن کا برادر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے. جس نے نانا کا مدینہ چھوڑا وہ حسین جس نے ماں کی تربت چھوڑی وہ حسین جس نے بھائی کا روزہ چھوڑا وہ حسین. ہاں وہی حسین. حسین کے نام میں 4 حرف ہے ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین اور چاروں حرف ہمیں الگ الگ پیغام دے رہے ہیں. ہاں نے کہا حق والا حسین سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین. واہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فرقان منظری صاحب قبلہ ذکر شہید اعظم. سبحان اللہ. ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح. جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح. حق ہے سبحان اللہ. وہ حسین بچپن آپ نے سنا ہے آج میں جوانی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کون میرے آقا حسین ہیں؟
ایک دن نانا مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پہ سجایا، بابا کی ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی اور اس شان سے باہر نکلے اپنے حجرے سے کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی آقا حسین باہر نکلے تو کسی ایک شخص نے پوچھ لیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ کہا کہ یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو اس نے مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے تمہارے باپ تو بہت زیادہ جنگجو تھے، تمہارے باپ تو بہت زیادہ جھگڑالو تھے، تمہارے باپ تو بہت زیادہ قتل کرنے والے تھے۔ معاذ اللہ، جب اس نے اتنا کہا تو لوگوں نے چاہا کہ اسے سزا دیں، اسے ادب دیں، تو امام حسین نے روک دیا۔ میرے آقا حسین اس کے پاس تشریف لائے۔ اخلاق دیکھیں آقا حسین کا۔ میرے حسین فرماتے ہیں، کیا تو بھوکا ہے؟ اگر بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلا دیں۔ تو پیاسا ہے؟ اگر پیاسا ہے تو ہم تجھے پانی پلا دیں۔ بتا کیا تیرے اوپر قرض آ رہا ہے؟ اگر قرض آ رہا ہے تو بتا، ہم اپنے پیسے سے تیرا قرض ادا کر دیں۔ بتا کیا بات ہے، کیا تو تھک گیا ہے؟ سفر کی تکان تیرے اوپر ہے تو بتا، ہم تیرے لیے آرام کا انتظام کر دیں۔ جب اس نے میرے حسین کا یہ اخلاق دیکھا تو کہتا ہے کہ آپ سخی نانا کے نواسے ہو، آپ کریم نانا کے نواسے ہو، آپ سخی ابن سخی ہو، آپ کریم ابن کریم ہو، آپ کریم باپ کے بیٹے ہو۔ آقا حسین مجھے معاف کر دو۔ میرے آقا امام حسین نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ منت سماجت کرنے لگا کہ حسین مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ میرے آقا امام حسین آگے بڑھے تو کسی نے کہا، آقا حسین اس نے آپ کے والد کی شان میں گستاخی کی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو میرے آقا امام حسین کہتے ہیں، ہم بلند پہاڑ ہیں، ہم کسی کے کہنے سے نیچے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مرتبہ کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا ہے، ہمارا مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ نے بلند کیا ہے، اور جس کا رتبہ نبی بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ حق ہے، یہ ہے میرے آقا امام حسین۔ اور سنو، آقا امام حسین کو پتا چلا کہ نبی کے صحابی حضرت اسامہ ابن زید بیمار ہیں، تو آقا حسین انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم صرف ذکر سنتے ہیں آقا حسین کا، شہادت سنتے ہیں، لیکن ان کی اداؤں کو اپناتے نہیں۔ حسین کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ ہم اس سیرت پہ چلتے نہیں۔ میرے آقا امام حسین بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بیمار کو دیکھنے جانا یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آج باپ بیمار پڑا ہے، بیٹا دیکھنے نہیں جاتا۔ ادھر بھائی بیمار پڑا ہے، بھائی دیکھنے نہیں جاتا۔ رشتہ دار بیمار پڑے، رشتہ دار دیکھنے نہیں جاتا۔ پڑوسی بیمار پڑے، پڑوسی دیکھنے نہیں جاتا۔ امام حسین ان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پہ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق، جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے، چاہے کتنی بھی لڑائی سہی، چاہے کتنی بھی برائی سہی، چاہے کتنا بھی آپس میں جھگڑا سہی۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو 3 دن سے زیادہ آپس میں نہ اتفاقی نہیں رکھنا چاہیے، ناراضگی نہیں رکھنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد جو پہلے بولے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ آپس میں ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پھر ہم کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارے رسول ہم سے راضی ہوں، ہمارے حسین ہم سے راضی ہوں۔ جب اس حال میں ہم دنیا سے جائیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو ہم دنیا سے جب جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، دنیا سے جاؤ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، دنیا سے جاؤ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک بہت بڑے گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر لوگ کہہ دے کہ ایک متقی اور پرہیزگار کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اسے
छींक आए तो छींक का जवाब दे, छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। चौथा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस घर आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। बेशक हक है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और पांचवा हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज इंसान अमीरों के जनाजे में तो शामिल होता है और बार बार जाके दिलासा देता है उसे कि भाई सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जजा देता है। बार बार उसे बताएगा, बार बार उसके सामने जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस अमीर को पता चल जाए कि मैं भी इसके यहाँ जनाजे में आया था। और गरीब के यहाँ इंतकाल हो जाए तो वही घर के या पड़ोस के लोग रहते हैं, अमीर उसके जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करते। जनाजों में शामिल हुआ करो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं इसमें दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जनाजों में शामिल हुआ करो। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहले हक सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, दूसरा हक जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, तीसरा हक जब वो दावत करे तो दावत को कबूल करे, और चौथा हक ये है कि जब बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए जाए। पांचवा हक ये है जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। मेरे आका इमाम हुसैन बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं और जब आप वहां पर पहुंचे, मेरे आका इमाम हुसैन ने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आज हम आका हुसैन की अदा को, इस सुन्नत को आज हम कितने लोग हैं जो हम इसको याद रखे हुए हैं, और कितने हैं जो बीमार को देखने के लिए जाते हैं। सिर्फ वाकयात सुनने से काम नहीं चलेगा, उनकी अदाएं अपनानी पड़ेंगी, उनके बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। फिर वो दौर भी आता है मेरे आका इमाम हुसैन पर जिसके बारे में सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या है? वो सन हिजरी 60 वही है जिसमें हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ। उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठा और उसने सबसे ज्यादा दबाव इमाम हुसैन पे डाला अपनी बैअत लेने का। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना तो गवारा किया, मक्का छोड़ना तो गवारा किया, करबला आना तो गवारा किया, लेकिन किसी फासिक के हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं किया। करबला के मैदान से क्या पैगाम मिलता है हमको, क्या सबक मिलता है कि किसी जालिम के सामने झुकना नहीं है। करबला से यही पैगाम मिलता है कि किसी फासिक को फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं देना है, उस काम को करना है जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। यजीद कौन था? यजीद के बारे में हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुरबिल खम्र, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद शराबे पीता था, यजीद नमाजें छोड़ देता था, यजीद के दरबार में नाचने वाली रक्कासा आती थी, यजीद डांस देखा करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां उड़ाता था, कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाता था। यजीद का खुद का बेटा कहता है कि कोई सुबह ऐसी नहीं होती जिस सुबह को मेरा बाप उठता हो और उसके चेहरे पर रात की शराब का खुमार न रहता हो, रात की शराब का नशा न रहता
हो, पता चला कि आका इमाम हुसैन ने उसके हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं किया। अब जरा अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताना, हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, किरदार यजीद से थी। आका इमाम हुसैन ने जब कल के शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, जब आका हुसैन ने कल के तारिकुस सलात के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, नारे रिसालत मसलके आला हजरत सलीम रजा पीलीभीती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुझे बताइए, आज इंसान शराब पी के कहे कि मैं हुसैनी हूँ, आज इंसान नमाजें छोड़ के कहे मैं हुसैनी हूँ, आज जिना करके इंसान ये कहे मैं हुसैनी हूँ। बताओ क्या वो अपने दावे में सच्चा है? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। यकीनन कल के यजीद के हाथ में जब हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, तो आज इंसान शराब पी के नमाजें छोड़ करके गुनाह करके ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो इतना याद रखना, ये मोहब्बत उसके काम नहीं आएगी। पहले हुसैन की अदाओं को अपनाओ। हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी वक्त में भी सजदा कज़ा नहीं किया। आज इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की पांचों वक्त की नमाज गायब है, बाहर मस्जिद के बैठ करके इलेक्शन की बातें करते रहेंगे और 10 मिनट नमाज में लगते मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते, फिर भी सीना तान के कहते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज की पाबंदी नहीं है तो हुसैन से सच्ची मोहब्बत का ये दावा आपका बेअसल है। बताना मकसद ये है कि मेरे आका इमाम हुसैन पे जब दबाव डाला गया तो मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना तो गवारा किया। नाना के रोजे पे अपना छोटा सा काफिला लेकर के आए और कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी पुश्ते मुबारक पे बिठाया करते थे। अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। आका हुसैन नाना मुस्तफा के रोजे से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए और अपनी माँ फातिमा की तुरबत से अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। फिर आखिरी सलाम करके जब मेरा हुसैन चलने लगा और जैसे ही मदीने से बाहर कदम निकाला, मुड़ मुड़ के देख रहे थे मदीने की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो मेरे आका हुसैन कहते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूटा है। नाना का रोजा छोड़ा हुसैन ने, माँ की तुरबत छोड़ी हुसैन ने, भाई की तुरबत छोड़ी हुसैन ने, और छोटा सा काफिला लेकर के जब मेरा हुसैन मक्के से रवाना हुआ कुफे के लिए और तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। खजूरों के लंबे लंबे बागों ने कहा था ए हुसैनियों कहां चले जा रहे हो? शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और तुम चले जा रहे हो। हवा के गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर रहे हैं, तुम चले जा रहे हो। आओ और खजूरों के साए में आराम कर लो। तब हुसैनियों ने जवाब दिया ए खजूरों के साए सुनो, हमें तुम्हारे साए की जरूरत नहीं है। अरे उसको तुम्हारे साए की जरूरत होगी जिसके सर पे किसी का साया ना हो। हमारे सर पर दामने हुसैन का साया है। हमें न दुनिया में किसी साए की जरूरत है और न हमें आखिरत में किसी साए की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब क़िबला जिक्र शहीद हुसैनी। और जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे, आका हुसैन ने पूछा ये कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। पूछा कोई और नाम है? कहा हाँ इसे करबला भी कहते हैं। फरमाया बस यहीं पर सवारियां रोक दो, यहीं पर कजाबे उतार लो। कहा हुसैन ये जगह पहचानी कैसे? कहा मैं एक अपने बाबा के साथ में एक जंग से वापस हो रहा था तो मेरे बाबा ने इसी नहरे फुरात के किनारे बैठ करके मुझसे कहा था बेटे हुसैन इस
जगह को गौर से पहचान लो। मेरे लाल, यही वो जगह है जहां तुम्हें शहीद किया जाएगा। मेरे बेटे, यहाँ तुम्हारे ऊंट बैठेंगे, यहाँ तुम्हारे घोड़े बैठेंगे, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ पर तुम्हारे अजवाज का खेमा लगेगा। सारे खेमे बताए, सारी जगह की निशानदेही कर दी मौला अली शेर खुदा ने। मेरा हुसैन जानता था नहरे फुरात के किनारे पर, इस नहरे फुरात पर 3 दिन यजीदियों का कब्जा रहा बज़ाहिर, लेकिन क़यामत तक मेरे हुसैन का कब्जा है। कल भी मेरे हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर था, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर है, और सुबह क़यामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पे रहेगा। वो नहरे फुरात जिसके बारे में मौला अली शेर खुदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर के जब नहरे फुरात का पानी ज्यादा बढ़ गया था और वो पानी कूफे की तरफ आ रहा था, कूफे वालों ने कहा मौला अली शेर खुदा से कि नहरे फुरात का पानी कूफे के अंदर आ रहा है, हमारे मकान डूब जाएंगे, हमारे मवेशी हिलाक हो जाएंगे, हमारे घरों में पानी भर जाएगा। तब मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को साथ लेकर के नहरे फुरात के किनारे पर आए। उस वक्त मौला अली शेर खुदा कूफे के अंदर रहते थे और आप अमीरुल मोमिनीन थे। अपना असा लेकर के नहरे फुरात के किनारे पहुंचे और आपने असा नहरे फुरात की तरफ करके कहा, ए फुरात के पानी कम हो जा। नहरे फुरात का पानी कम हो जाता है। पूछा कूफे वालों से, इतना ठीक है? बोले हुजूर और कम कर दीजिए। फिर असे का इशारा करके कहा फुरात के पानी कम हो जा, पूरा पानी फिर कम हो जाता है। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि हुजूर और कम कर दीजिए। आपने नहरे फुरात की तरफ असा करके कहा, ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला जाता है। पूछा क्या अब ठीक है? कूफे वाले बोले हाँ हुजूर अब ठीक है। तो देखो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हुसैन को साथ लिया, नहरे फुरात के किनारे पे खड़ा करके नहरे फुरात के पानी को मौला अली ने नीचे करके दुनिया वालों को दिखा दिया कि इस नहरे फुरात पर कल भी अली के हुसैन के बाबा का कब्जा था, आज भी हुसैन के बाबा का कब्जा है और क़यामत तक हुसैन के बाबा का कब्जा है। तो ये है सुभान अल्लाह। हुसैन पानी की वजह से नहीं लड़े थे। फारूक मदनापुरी ने कहा था पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। तो वो है इमाम हुसैन। करबला के मैदान में 72 जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया। कितने? 72। और भेजे कितने थे इब्ने जियाद ने? 22,000। कोई मुकाबला है? उसमें दूध पीते बच्चे हैं, कमसिन बच्चे हैं, 80 साल के करीब बुजुर्ग भी हैं उसमें। कहाँ 72, कहाँ 22,000? अरे डबल आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते, 5 गुना आ जाते, 1,000 आ जाते, 2,000 आ जाते, 22,000। तो इब्ने जियाद से दुनिया ने कहा, इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए। तो इब्ने जियाद की अकल कहती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं जो एक एक शहजादा कई हजार के लिए काफी है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। बेशक हक है। को देखना और है, में देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है। अरे शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जो तन्हा 1,000 से लड़ा करता था, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। हुसैन करबला के मैदान में भी मुख्तार था, आज भी मुख्तार है, सुबह कयामत तक मुख्तार रहेगा। हुसैन कमजोर का नाम नहीं है, हुसैन पावरफुल और ताकतवर का नाम है। लेकिन वो अपने रब की रजा पे राजी थे। रब की मर्जी थी कि ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए वो रब की रजा में राजी रहे।
आओ जरा देखो मैं आपको करबला का पैगाम दूं और अपनी जगह पे बैठ जाऊं। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, तब मेरा हुसैन सोचता है कि अब मैं मैदान करबला में जाता हूं। आप अपने खेमे में तशरीफ लाए, क्या देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हो रही है जहां बेटों का जनाजा निगाहों के सामने है, भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, हजरत अली अकबर का जिस्म निगाहों के सामने है, हजरत कासिम का जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में भी कुरान की तिलावत हो रही है। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। कोई कहीं बेहोश पड़ा हुआ है, कोई कहीं बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन ये करबला का मैदान के 71 लोग जामे शहादत नोश कर गए, जिसमें 18 या 19 घर वाले इमाम हुसैन के बताए जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, लेकिन फिर भी आप देखें ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। उनके बेटे ओनो मोहम्मद के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरी वो माएँ सोचे, मेरी वो बहनें सोचे कि जो कुरान की तिलावत नहीं करती लेकिन सीरियल कोई नहीं छोड़ती, वो टीवी की कोई किस्त नहीं छोड़ती, वो नाटक की कोई किस्त नहीं छोड़ती और कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं, नमाजें छोड़ देती हैं। वो क्या हजरत ज़ैनब के पास कौन सा मुंह लेकर के जाएंगी, वो कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगी हजरत ज़ैनब के पास में। आज 10 मुहर्रम का दिन आए, हमारी माँ बहनें बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आए, मेलों के मौके पे मेलों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आए। क्या यही पैगाम था करबला का? क्या यही सबक था करबला का? अरे वो करबला का मैदान जहां पर जब मस्तूरात के सरों से चादरें उतार ली गई, उन्होंने अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था ताकि उनका पर्दा बरकरार रहे, उनके चेहरों पर किसी की नजर न पड़े। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करने वाली गलियों में दावा करती हैं कि हम हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करती हैं, हम हजरत फातिमा से मोहब्बत करती हैं। जरा सोचो तो सही, वो हजरत फातिमा जिन्होंने अपने शौहर मौला अली को ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा फातिमा ऐसा क्यों? कहा फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। आला हजरत पुकार के कहते, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है, हजरत फातिमा है, हजरत सकीना है, हजरत शहरबानो है जिन्होंने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आओ इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली और कुरान करीम की तिलावत को रोका। कहा भाई आप मैदान करबला में जा रहे हैं, आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं। आज तेरी बहन अपने हाथों से तुझको दूल्हा बनाएगी। नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे सजाया, बाबा की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत फातिमा की पेबंद लगी हुई चादर का पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। वो मेरा हुसैन जब शहादत का दूल्हा बना, अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया और हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना। अपनी बीबी शहरबानों को देख के हुसैन ने फरमाया, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई कई कई दिन के तुझे फाके करने पड़े, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई। तेरा शौहर तुझसे राजी है। एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें
तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। बाप हो तुम, औलाद वाले हो, तुम्हारे घर में भी औलाद है, बेटियां हैं। देखो हुसैन ने जब अपनी बेटी सकीना से कहा होगा, बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, उस वक्त का जरा मंजर निगाहों के सामने लाइए। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और वो बॉर्डर पे जा रहा हो या जॉब के लिए जा रहा हो, पूरा घर रात भर नहीं सोता, पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके लाया जाए। अगर किसी के घर वाले कोई कमाने के लिए सऊदी 3 साल के लिए चला जाए, पूरे घर वालों को रात भर नींद नहीं आती कि हमारा अजीज जा रहा है, ये वो है जो वापस आ सकते हैं। लेकिन जरा करबला का मैदान देखो, जो गया वो वापस नहीं आया, जो गया वो लौट कर नहीं आया। फिर भी ऐसे आलम में सब्र करना और ये कहना मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन के घर वालों की रजा है, ये हुसैन के घर वालों ही का काम है। जब मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाया, बेटी अब तेरा बाबा मैदान करबला में जा रहा है, इतना सुनना था। हजरत सकीना रो के कहती है, बाबा मैं शाम रात को आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझे नींद आती है। बाबा आपके बाद मेरी कौन की खबरगिरी करेगा। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपनी बेटी सकीना को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी को रोने मत देना। अल्लाह अकबर, ये है मेरे आका इमाम हुसैन। जब चलने लगे तो जवान बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें आज हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आज जो सैयदों की नस्ल आप देख रहे हो, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। आका इमाम हुसैन ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है मेरे लाल, अभी बड़ी बड़ी परेशानियों का सफर करना है मेरे लाल। बेटे तुम अपने खेमे में जाकर के आराम करो। आका इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे लाल तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे नबी की नस्ल का सिलसिला चलेगा। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा के फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तो तुम्हें मदीना वापस जाना है। अब बताना मकसद ये है कि हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, उधर यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है, लेकिन पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, सुभान अल्लाह सुभान। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, दिल्ली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे मकनपुर की सरजमीन पर असली सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे आपकी छौचा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और आगे बढ़ो देवा शरीफ पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे महराना शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बहरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हक है, हक है। यजीद जैसे
अधिकारी की हैसियत क्या है। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से आया, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। यजीदियों ने सोचा हमने हुसैन का वंश खत्म कर दिया, हमने हुसैन का खानदान मिटा दिया, अब कोई हुसैनी नहीं होगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से आया, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। मेरा हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाता है, बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। और यही एक बेटा इमाम हुसैन का है। और एक बेटे थे इमाम हसन के, इमाम हसन मुसन्ना, जिनसे हसनी हुसैनी सैयद चले, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी। आओ जरा देखो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है। अगर इनकी तारीख आंख के सामने रख दी जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। कभी करबला के वाक़े के बाद आप हंसे नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं। एक बार इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, उन्होंने पूछा बाबा कभी तो कोई ना कोई मोड़ ऐसा आता है जिंदगी का, आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन आप कभी नहीं मुस्कुराए, आप कभी नहीं हंसे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे लाल जो मेरी आंखों ने देखा है, अगर वो तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने बाबा के जिस्म पे तलवारें लगते देखी हैं, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपनी फूफी अपनी माँ के अपनी बहन के सर से चादर उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी बहन के कानों से बालियां नुचते हुए देखी हैं। मेरे बेटे जो मैंने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी नहीं मुस्कुराता। अल्लाह अकबर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपकी दोनों आंखों के दरमियान नाक के बराबर में रोने की वजह से निशान पड़ गए थे। इतना रोते थे, इतना रोते थे, करबला शरीफ की तरफ मुंह करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते थे। लोग कहते थे बारिश नहीं होती लेकिन पानी कैसे टपकता रहता है इनके परनाले से। तो किसी ने जाके देखा तो आप करबला शरीफ की तरफ मुंह करके रोते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और लेकिन आपकी सखावत का ये आलम, आपकी आदत का ये आलम कि मदीने शरीफ के तकरीबन 100 परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। 100 परिवार। करबला शरीफ से वापस आने के बाद आपने 2 काम किए थे। एक काम ये किया था कि आपने मदरसा खोला था जहां आप दरसे हदीस दिया करते थे, नाना मुस्तफ़ा की हदीस का दर्स दिया करते थे। और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने एक लंगर खाना खोला था जहां गरीब खाना खाते थे, मुफलिस खाना खा के जाते थे, नादार गरीब कल्लाश आते और खाना तनावुल करके जाते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 काम किए थे। पता चला ये मदरसा कायम करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था कि ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से दीन जिंदा है, ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से तुमको आलिम हाफिज मिलते हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम तक नसीब नहीं होगा। इसीलिए आज हुकूमत की भी नजरें इन मदरसों पे टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मदरसे में बच्चे जब दीनी तालीम पढ़ेंगे तो अपने बुजुर्गों की तारीख को जानेंगे, और जब दीनी तालीम पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको क्या पता इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस लिए दी थी, उनको क्या पता कि मेरे आका ने ये इस्लाम कैसे पहुंचाया है, फैलाया है, उन्हें क्या पता कि सहाबा ने इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। इसलिए ये मदरसे बहुत ज़रूरी हैं। और जब जब कौम के ऊपर परेशानी आती है तो ये मदरसे के आलिम ही तुम्हारे काम आते हैं। जब जब कौम पे परेशानी आती है तो मदरसे के हाफिज ही तुम्हारे काम आते हैं। तुम देख लो, देश को आज़ाद कराने की जब बात आई तो सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस शख्सियत ने दिया था वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके दरसे हदीस और दरसे कुरान देने वाली शख्सियत अल्लामा फजल हक खैराबादी की थी।
सबसे पहला जिहाद का फतवा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिया था वो एक मदरसे के पढ़े हुए थे, मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिन्हें अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। आपने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिन्होंने इल्म सर्फ की इल्म सेगा किताब लिखी है, काला पानी अंग्रेजों ने जिनको भेज दिया वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। आप दिल्ली में इंडिया गेट है जहां पर 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, उनमें 66,000 से ज्यादा नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने वो कुर्बानियां दी। एक अंग्रेज कहता है कि जब हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से पकड़ के ले जा रहे थे काले पानी के लिए, तो चांदनी चौक में कोई पेड़ कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए उलमा ने काम किया है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारा लहू इसमें शामिल है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। जब जब कौम के ऊपर परेशानियां आई हैं तो ये आलिम ही कौम के काम आए हैं। इसलिए एक पैगाम दे के जाता हूं कि अगर कोई मामला हो तो अपने उलमा के करीब रहो। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया ना आलिमों से मेरी कौम को कि ना ये उलमा के पास बैठते हैं ना आलिमों के पास बैठते हैं। अरे मसाइल समझने के लिए इन उलमा को मदरसे में 10-10 साल लग जाते हैं, 12-12 साल लग जाते हैं। तुम 5 मिनट की क्लिप में यूट्यूब पे सुन के मसाला समझ लोगे, ये सिर्फ सोच है तुम्हारी, तुम 5 मिनट में मसाला समझ लोगे इंटरनेट पे नहीं। 10-10 साल लग जाते हैं जिनको मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ के तालीम हासिल करने में। तुम एक दिन में मुफ्ती बन जाओगे नहीं, जो जिसका काम है वो उसी को जेबा देता है। अगर कोई राज मिस्त्री है उसे ले जा करके आप टेलर की दुकान में बिठा दो, कहो कि तू कुर्ता पजामा सिल दे, क्या वो सिल पाएगा? आप दर्जी को ले जा करके राज मिस्त्री के काम पे लगा दो कि ये दीवार की चुनाई कर दे, क्या कर पाएगा? एक इंजीनियर को ले जा करके आप अदालत में खड़ा कर दो कि तू वकालत कर, क्या वो वकालत कर पाएगा? अरे वकील का काम है वकालत करना, इंजीनियर का काम है नक्शे बनाना, ऐसे ही उलमा का काम है कि शरीयत की बातें अपनी कौम तक पहुंचाना, और आपका काम है उसको सुनकर के उस पर अमल करना। तो बताना मकसद ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदरसा खोला, और मदरसा खोला वहां पर दरसे हदीस दिया आपने। और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने लंगर खाना खोला जहां गरीबों को खाना खिलाते थे। एक दिन वो जालिम आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था लंगर पे खाना खाने के लिए। पहले ही दिन देख के पहचान लिया आपने ये वही जालिम है। आपने अपने खादिम को हुक्म दिया इसे ठंडा पानी पिलाओ और इसे शिकम सैर कराओ। उसको बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया गया। तीसरे दिन उसने पूछ लिया क्या पहचाना नहीं मुझे? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैंने तुझे पहले ही दिन देख के पहचान लिया था। उसने कहा फिर मुझे खाना और पानी क्यों खिलाया पिलाया? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सुन जालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू वही है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। कहा फिर खिलाया पिलाया क्यों? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जब हम तेरे यहाँ कूफे में मेहमान बन के गए थे तो जो तूने हमारे साथ में किया है वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। ये है हुसैन के बेटे, ये है हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिससे मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। ये कह के मेरा हुसैन मैदान करबला में आया और मेरे हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। यजीदियों ने कहा हुसैन दो बातों में फैसला, या यजीद की बैत या फिर हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया ठीक
ठीक है फिर भेज जिसे तुझे अपना नाज हो, उस पहलवान को हुसैन के मुकाबले के लिए भेज। ये सब बड़े बड़े पहलवान आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिए। हुसैन की तलवार है जो बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिमर बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया कि वही हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे के जा रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम देकर जा रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसीओ में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है वो हुसैन तलवारें चल रही हैं और सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, सजदा कर रहा है। हुसैन आखिरी वक्त में सजदा करके पैगाम दे के चले गए, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, कभी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। बेशक, सुभान अल्लाह, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत यही है। जुए से दूर रहो, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करोगे, हुसैन मैदान क़यामत में हमारे काम आएंगे। हुसैन नमाज छोड़ने वालों के काम नहीं आएंगे। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़ ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुँचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम दे के जा रहा है कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी सजदा क़ज़ा नहीं होना चाहिए, कभी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, अपने इन उम्मतियों से कह दो जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान इस्लाम की, मुझको उसका बदला नहीं चाहिए। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, अली शेर खुदा से मोहब्बत करो। हुसैन के लिए पूरी दुनिया कल भी खिराज अकीदत पेश कर रही थी, आज भी कर रही है और सुबह क़यामत तक पेश करती रहेगी। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में,